So we have started our discussion about nuclear shapes. So quadrupole moment is a very important term which describe shape of any nucleus. So if Q is 0, quadrupole moment is 0, that means nucleus is spherical symmetric, or nucleus, we consider nucleus as a sphere. So nuclear quadrupole moment interact with orbital electrons of the atom, and consequently there is a shift in the atomic energy levels which lead to the splitting of spectral lines. Due to this deviation from the spherical symmetry do occur in nuclei whose spin number are 1 or more. So we can say that in case of quadrupole moment some value, it may be positive or it may be negative, then this quadrupole moment interact with the orbital electrons, and splitting of atomic energy level occur there. So due to this, nucleus change its shape from the spherical symmetry or spherical shape to some another shape. And such shapes which are not spherical can be prolate or oblate ellipsoidal. Means shapes are generally elliptical, and some type of elliptical shapes is known as the prolate, and some type of elliptical shape is known as the oblate. Generally it is said that nuclei with positive quadrupole moment, if Q is equal to positive, then such type of shape is known as the prolate. So we can see here, when Q is positive the shape is prolate, and prolate is also a ellipsoidal state, and this elliptical shape is along the axis of rotation. And when Q is 0, means when quadrupole moment is 0, we consider that nucleus have spherical structure. And when Q is negative, quadrupole moment is negative, then shape is known as the oblate shape. And in case of oblate shape, we are watching here that this nucleus is elliptical shape, but axis of rotation is not along this ellipse, but perpendicular to this ellipse. Such type of shape is known as the oblate, and oblate shape is there when Q is negative, prolate shape is there when Q is positive, and spherical shape is there when Q is 0. So in examination, questions about nuclear shapes are generally asked, so we can keep about the shape of the nucleus from these structures. We should keep in mind that these structures are due to Q value. Q0 means spherical shape, Q positive means prolate shape, Q negative means oblate shape. After this, we study about the properties of nucleus and their determination. So we study some properties of nucleus. First of one is nuclear mass. Since we have talked earlier also that inside the nucleus proton and neutrons exist, but electrons are not there inside the nucleus, they are around the nucleus in different orbits.
So mass of the nucleus, we can say that nucleus contains protons and neutrons. It means total number of neutrons and total number of protons का जो हमारे पास मास होता है वो न्यूक्लियस का पूरा मास होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होंगे उनका मास और जितने न्यूट्रॉन होंगे उनका मास हमें बताएगा कि न्यूक्लियस का मास जो है कितना है। लेकिन अगर हम एटम की बात करें तो हम ये बोलते हैं कि एटम का जो मास होता है वो 99.75% जो है वो न्यूक्लियस के मास के बराबर ही होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर वेरी लाइट पार्टिकल, उनका जो मास होता है बहुत कम हमारे पास होता है। तो इसलिए एटम का जो मैक्सिमम मास हम लेते हैं वो न्यूक्लियर मास ही हमारे पास होता है, न्यूक्लियस का मास ही हमारे पास होता है। 99.75% मास एटम में न्यूक्लियस के कारण होता है, बाकी जो थोड़ा सा हमारे पास रहता है वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से होता है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास से काफ़ी कम होता है। और जो न्यूक्लियस का मास है इट इज़ मेजर्ड विद गुड एक्यूरेसी विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ बाय मेजरिंग E/m वैल्यू। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड से हम जो है न्यूक्लियस का मास निकालते हैं और उसको निकालने के लिए हम जो है E/m वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो E हमारे पास जो चार्ज ऑन द न्यूक्लियन है और m हमारे पास जो न्यूक्लियन का मास है। फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है वो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम AMU भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो बोलता है ये 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास क्या होता है, बोलता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का जितना मास होता है उसका 1/12 हमारे पास जो है 1 AMU होता है। तो हम क्या बोलेंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 कार्बन एटम। और मास ऑफ 1 कार्बन एटम हम कैसे निकालते हैं, जैसे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है लेकिन मास नंबर जो है 12 होता है। तो इसलिए मास नंबर 12 है, उसका मतलब क्या है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम हैव 12 ग्राम मास। मतलब मास नंबर 12 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कार्बन का मास है वो हमारे पास जो 12 ग्राम होगा, लेकिन कितने कार्बन एटम का एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो कार्बन के एटम हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो कार्बन के एटम हैं उनका जो मास होगा वो 12 ग्राम के आसपास हमारे पास होता है। ऐसे हम किसी दूसरे एटम का मास भी निकाल सकते हैं उसके मास नंबर से। तो जैसे हम अगर नाइट्रोजन 714 की बात करें तो 14 वहाँ पे मास नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो 14 ग्राम मास होगा वो होगा हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनका मास 14 ग्राम हमारे पास होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक एटम ऑफ कार्बन है 12/n ग्राम। तो अगर n कार्बन के एटम का 12 ग्राम मास होता है तो एक कार्बन के एटम का मास कितना होगा 12/n ग्राम। और 1 AMU को हम क्या बोलते हैं, इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमने 12/n ग्राम यहाँ पे निकाला। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1/12 मल्टीप्लाई 12/n। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/n हमारे पास जो 1 AMU के बराबर बचेगा। लेकिन जो हमारे पास 1/n हुआ
एन एवोगेड्रो नंबर है जो कि 1.6023 मल्टीप्लाई 10^23 हमारे पास होता है। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/1.6023 मल्टीप्लाई 10^23 तो ये हमारे पास बनता है 1.66 मल्टीप्लाई 10^-24 ग्राम। और इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10^-27 किलोग्राम हमारे पास बना। तो हम क्या बोलते हैं कि जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है वो 1.66 मल्टीप्लाई 10^-27 kg होता है। और इतना ही लगभग न्यूट्रॉन का मास भी होता है और प्रोटॉन का मास भी होता है। तो हम इसको याद रख सकते हैं सिंपल कि 1 AMU जो होता है वो एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर, एक प्रोटॉन के मास के बराबर ही उसकी वैल्यू होती है 1.66 मल्टीप्लाई 10^-27 kg। फिर हमारे पास आता है यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हम एनर्जी की यूनिट लेते हैं वो हमारे पास कई बार तो हम जूल में लेते हैं, लेकिन कई बार हम जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी की यूनिट है वो लेते हैं। तो बोलता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या होता है, एनर्जी कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड इन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में उसको एक्सेलरेट करते हैं तो उस केस में जो उस एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बोलते हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन को हम जो है एक्सेलरेट करते हैं लेकिन 1 वोल्ट की पोटेंशियल, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस या हमारे पास 1 वोल्ट के अंदर। तो अगर हम एक कैपेसिटर लें और कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उनको 1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई करें तो उसके अंदर अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट होगा, जो कि 1 वोल्ट हमारे पास जो वोल्टेज है इसकी। तो उस केस में बोलता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी जब ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में या 1 वोल्ट वोल्टेज में ये हमारे पास मूव होगा तो ये जो एनर्जी गेन करेगा वो एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होगी। या मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 मल्टीप्लाई बाई 1 वोल्ट। तो 1 EV, E का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे या पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है मल्टीप्लाई बाई V मतलब 1 वोल्ट। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 CV हमारे पास आता है। लेकिन 1 CV मतलब कूलम्ब वोल्ट, 1 कूलम्ब वोल्ट 1 जूल के बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन कितना बना 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 जूल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 जूल के बराबर होता है। या अगर हमने 1 जूल निकालना है तो हम इसको बटे में ले सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होते हैं वो एनर्जी के यूनिट होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, लेकिन ये तो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट हैं। लेकिन जो बिगर यूनिट हैं वो भी कई बार हम जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ करते हैं और वो होते हैं हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और फिर ये हमारे पास एनर्जी एक्सप्रेशन है एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन 1 AMU एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट और व्हाट इज़ द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। तो 1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो है कितनी एनर्जी होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। बोलता है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो आइंस्टाइन का एनर्जी मास रिलेशन है उसको हम यहाँ पे लगाते हैं E = mc²। तो C यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है
और जो मास है वो हम यहाँ पे 1 AMU ले रहे हैं, मतलब 1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो है एनर्जी निकालनी है। तो हम क्या बोलते हैं 1 AMU हमारे पास जो होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg होता है, जो कि अभी हमने बताया था कि अगर मास 1 AMU है मतलब वो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg है। तो एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 AMU विल बी इक्वल टू mc²। तो मास आ गया 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 और c आ गया ना 3 मल्टीप्लाई 10⁸ का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास E की वैल्यू आती है 1.494 मल्टीप्लाई 10⁻10 जूल। लेकिन अगर आपने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जो अभी रिलेशन हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो जूल है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जूल। तो 1 जूल हमारे पास कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे कि 1 जूल का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उस 1 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 से एनर्जी को डिवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है और ये हमारे पास बनता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या बोलते हैं कि एक AMU हमारे पास जो होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हमारे पास होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी। तो जैसे किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी होती है मास पर इनटू वॉल्यूम, वैसे ही न्यूक्लियस की डेंसिटी भी हमारे पास होती है मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियर डेंसिटी है रो, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो किसी भी मटेरियल की जो डेंसिटी होती है वो हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं मास पर इनटू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस का मास है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम है। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो किसी न्यूक्लियस का मास जो है टोटल न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे डिपेंड करता है कि कितने उसमें न्यूट्रॉन है कितने उसमें प्रोटॉन है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। लेकिन हमें पता है कि न्यूक्लियस को हम स्फीयर ट्रीट करते हैं, मतलब 4/3 πr³ विल बी द स्फीयर here, and mass of one nucleon is 1.66 multiplied 10⁻27 kg, and number of nucleons are denoted with the A, because A have protons and neutrons. Total number of the proton and total number of the neutron in some nucleus is called as A. तो जब हम यहाँ पे रो कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे पास ए हैं, और मास ऑफ 1 न्यूक्लियन हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg हमारे पास होता है। तो न्यूक्लियस का मास किस पे डिपेंड करता है? हमें बोलते हैं कि न्यूक्लियस का मास डिपेंड करता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे। तो उस न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब कितने न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, उसको हम एक न्यूक्लियॉन के मास से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि एक का मास होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27। तो जो हमारे पास टोटल न्यूक्लियस है वो हमारे पास ए है, तो ए का मास हमारे पास कितना होगा मल्टीप्लाई बाई ए। तो जब हम डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास 1.66 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻27 बनेगा, और नीचे 4 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻15 हमारे पास बनेगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रो की वैल्यू 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻17 kg पर मीटर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी? 10⁻7 लगभग 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एंट्रेंस में पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है। Thus nuclear density is of the order of 10⁻17 kilogram per meter cube. This density is same and a constant quantity for all
न्यूक्लियाई। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़।